Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 4th video of population interaction, in which you will learn the predation. In part 1st video lecture, you have learned the mutualism, the population interaction in which two living organisms live together in such a manner that both benefited to each others. In part 2 video lecture, you have learned the competitions in which two living organisms live together in such a manner that both harm to each others. In part 3 video lecture, you have learned the parasitism in which one get harmed while other get totally benefited. In the 4th video lecture, you will learn the predation in which the similar things, that is one get benefited while other get harmed. And there are so many examples in which predators are dominate over their prey. Prey are the organisms that feeded or get harmed, and predators are those organisms that get benefited. Now back to the concepts. Now the predation. Predations, you are well familiar word with the predators. Predators means the living organisms which feed something, and in this way one get totally benefited while other get harms. It means the similar results as like the parasitisms, and the phenomenon is known as predations. For example, the herbivores feed grasses. In this way the grass is a living organisms belong to a plantae feeded by the herbivores, so the herbivores will be the predators and the grass are known as the prey. Grass here act as the prey while the herbivores as a predators. It act as the predators, and the phenomenon of grazing grass by herbivores is known as the predation. Lion on the other hand feed to the deer. In this way deer is the prey while the lion act as the predators, and the phenomenon is known as predations. So predations can be explained as, here the one thing should be noticed that predators and parasites are having similar properties in which two living organisms live together while one get benefited and other get harmed. That is, one is positive sign while other get harmed. In parasitism, one individual obligate to another. पैरासाइट्स में क्या होता था, एक की मजबूरी थी किसी के बॉडी में रहना, लेकिन प्रीडेशंस में ऐसा नहीं है. जैसे लायन है, डियर को खा रहा है, तो डियर को खाना इसकी मजबूरी नहीं है. डियर की जगह पे अगर विल्डर बीस्ट मिल गया या फिर कोई पिग मिल गया, ठीक है, या फिर कोई बफेलो मिल गया, कोई बड़ा हाथ शिकार लग गया, तो इस समय ये ऑब्लिगेट नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको खाएगा ही नहीं. लेकिन ई कोली बैक्टीरिया हमारे कॉलन में रह रहा है, तो ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर रह जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है. कोई कुछ और खा के रह जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है. तो कुछ ऐसे भी हैं जो ऑमनीवर्स हैं, जो कुछ भी खा के रह जाते हैं. While in predations there is no obligations required in which single individuals can feed more than other specific and non-specific organisms. Specific means डियर खा रहा है तो ठीक, नहीं तो पिग या बफेलो ले लेगा. ऐसे ही काऊ है, हस्क मिला तो ठीक, नहीं तो सूखी घास खा के भी रह जाएगी. तो प्रीडेशंस और पैरासिटिज्म में ये बेसिक डिफरेंट है. ये आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ. व्हाट आर द की डिफरेंट बिटवीन प्रीडेशंस एंड पैरासिटिज्म. ये आपको इसी सेंटेंस को ध्यान में रख के, इसी सेंटेंस को केयर ऑफ करके इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. आते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बता दे रहा हूँ. सबसे पहले हम डिफिनीशंस में आते हैं. डिफिनीशंस ऑफ प्रीडेशंस: इफ टू लिविंग इंडिविजुअल्स लाइव टुगेदर इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ द एनी इंडिविजुअल फीड टू अनदर फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म. ऐसे इस तरह से दो इंडिविजुअल साथ साथ रह रहे हो कि एक जो है दूसरे को ये फीड कर रहा हो, यानी एक को फ़ायदा पहुंच रहा हो और दूसरे को न तो फ़ायदा पहुंच रहा हो, दूसरे को नुकसान हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे प्रीडेशंस, ठीक है. तो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पे प्रीडेशंस की. प्रीडेटर्स बी हर्बीवर्स और कार्निवर्स. प्रीडेटर्स कुछ भी हो सकता है, हर्बीवर्स भी हो सकता है, कार्निवर्स. आपके दिमाग में जब मैं प्रीडेटर्स वर्ड पहली बार यूज किया तो आपको समझ में आया होगा कि कोई कार्निवर्स, लायन, टाइगर, ठीक है. ऐसा नहीं है, कोई भी लिविंग इंडिविजुअल्स हो सकता है प्रीडेटर्स कुछ भी हो सकते हैं. ये आपको ध्यान देना है, ये समझना है. प्रीडेटर्स कोई भी लिविंग इंडिविजुअल्स हो सकता है, ठीक है.
ये सिर्फ हर्बीवर्स ही नहीं हो सकते, कॉर्निवर्स, या यूँ बोलो कि ये सिर्फ कार्निवर्स नहीं हर्बीवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दिमाग में यहाँ पे फोकस आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटर्स में बी फाइटोफेगस इंसेक्ट, नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। अब ये फाइटोफेगस इंसेक्ट वाला लोचा कहाँ से आ गया भाई? देखो ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लांट्स के, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स के सेल सैप पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें भरे हुए लिक्विड मटेरियल्स को बोलते हैं सेल सैप। तो इसके सेल सैप को चूस करके, सेल सैप को पी करके बहुत सारे इंसेक्ट रह जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? फाइटोफेगस इंसेक्ट्स। एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइटोफेगस इंसेक्ट्स? So phytophagous insects are those insects that take nourishment from the plants as a cell sap. These are example of predators. Phytophagous insects are the example of predators. Insect that actually, the corn borer insects you have learned, the root borer insects you have learned. So the nectar suckers and the leaf suckers are actually the example of phytophagous insects. So phytophagous insects are actually total 25%. It is the totally 25%. Phytophagous insects are nearly 25% of the total insects are phytophagous insect that responsible to harming the plants by continuous sucking the cell sap, by continuous intake the food materials as the cell sap, so that they responsible for the continuous harming of the plants as well as their different parts. Predators show prudent behavior as an ecosystem. Predators जो होते हैं वो prudent behavior show करते हैं। अब ये prudent behavior क्या होता है भाई? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे। सपोज दैट ये कोई प्रीडेटर्स है, ये प्रीडेटर्स जो है कॉन्टीन्यूसली प्रे को फीड करते करते अपने कॉलोनी को बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, किसको फीड कर रहा है? अपने प्रे को फीड कर रहा है। प्रीडेटर्स है, ये अपने प्रे को फीड कर रहा है और अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन का क्या कर रहा है? ओवर एक्सप्लॉइटेंस। ओवर एक्सप्लॉइटेंस, जब आप ज़बरदस्ती कोई काम करते हो तो उसको ओवर एक्सप्लॉइटेंस कहते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेंस में क्या होता है कि इसके जितने भी प्रे हैं ना, जितने भी शिकार हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जब ये पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये प्रीडेटर्स की कॉलोनी धीरे धीरे घटेगी और ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो क्या होगा? प्रीडेटर्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ the species of prey, so that if the all species of prey get extinct, then the predators extinct too. Predators extinct too. This is the, that's why predators are called as the prudent or natural prudent. Natural prudent means क्या होता है? prudence means होता है intelligence और serious. So prudence behavior, predators show the prudence behavior. इसको कैसे explain करेंगे? If the prey over exploit the, then the prey, if the prey over exploits, or the, if the predators over exploits, then the prey get extinct. If the predators over exploits, predators over exploits, then it is possible to chance of extinction of prey. If the all prey get extinct, then what happen? Predator itself extinct too. The phenomenon is known as the this ideal behavior of predators is known as prudent behavior, and it may be asked in the examination, why predators show the prudent behavior. ठीक है, फिर से एक बार बता दो, ध्यान सुनो। अगर प्रीडेटर्स जो है ओवर एक्सप्लॉइट कर गया, बढ़ रहा है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, तो कुछ समय के बाद प्रे जो है उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा भाई। जब सब के सब यही ग्रो करेंगे, जैसे मान लो कि किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी कार्निवर्स है वो गायब हो जाए। ठीक है, तो जितने भी डियर हैं वो अपने क्या करेंगे? जितने भी डियर अपने कॉलोनी को बढ़ाना शुरू करेंगे, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू करेंगे। अब डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ग्रासेस की पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाएगी। तो जब ग्रासेस की पॉपुलेशन घट जाएंगी तो डियर क्या खाएगा? वो भी तो डाई कर जाएगा। तो डियर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रूडेंट बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सो प्रूडेंट बिहेवियर इज एसेंशियल बिहेवियर शोन बाय द प्रीडेटर्स, that need to explain by you. It is very important
मैं पहले बता दिया, एग्जाम में अगर आ गया तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फाइटोफेगस इंसेक्ट को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बाकी इस फिनोमिनन को भी आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, इट में भी हर्बीवर्स और कॉर्निवर्स। एडवांटेज ऑफ प्रीडेटर्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स के एडवांटेज क्या है? प्रीडेटर्स एक्ट एज एनर्जी कंडुइट्स अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल। आप 10th में थे तो ट्रॉपिक लेवल पढ़े थे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ट्रॉपिक लेवल में जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, इसको सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को थर्ड ट्रॉपिक लेवल वाले फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को फीड, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ग्रास है तो ग्रास को कौन फीड कर रहा है? ग्रास को डियर फीड कर रहा है। डियर को कौन फीड कर रहा है? डियर को लायन फीड कर रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आप वहाँ जब पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? 10th में, तो एक लॉ पढ़े थे, लिंडमान 10% लॉ। ये बहुत एग्ज़ाम में आता होगा, लिंडमान 10% लॉ के अकॉर्डिंग। हालांकि 12 में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इकोसिस्टम चैप्टर जो 14 है वो नहीं रहा इस साल। तो होता क्या है कि जितनी भी एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 1 में अवेलेबल है, उसको अगर कोई ट्रॉपिक लेवल 2 को ऑर्गेनिजम्स खा रहा है तो उसका 10% एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 2 के ऑर्गेनिजम्स को मिलता है। फिर ट्रॉपिक लेवल 2 का ऑर्गेनिजम्स अगर इसको खा रहा है तो उसका 10% एनर्जी जो है किसको मिलता है? 10% एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 3 को मिलता है। ऐसे 10% हर एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी नेक्स्ट जो है ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचती है। यानी कि बीच में ये प्रीडेटर्स न रहें, ये प्रीडेटर्स अगर न रहें तो ये एनर्जी जो है ट्रॉपिक लेवल में फ्लो नहीं करेगी। ट्रॉपिक लेवल में, ट्रॉपिक लेवल 1 के ऑर्गेनिजम्स यानी ग्रास से ट्रॉपिक लेवल 2 के ऑर्गेनिजम्स में यानी कि डियर में जो एनर्जी पहुंची वो इसलिए पहुंची क्योंकि डियर्स जो है यहाँ पे एनर्जी का कैरियर हो गया। देखो अब ट्रॉपिक लेवल 1 का जो एनर्जी है वो ट्रॉपिक लेवल 3 की एनर्जी में कैसे पहुँची? यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 1 है यानी ग्रास की एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 3 के ऑर्गेनिजम्स यानी लायन में कैसे पहुँची? बिकॉज ऑफ हैविंग द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स बीच में कौन आ गया? डियर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन होता है? हर्बीवर्स होता है, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवर्स होते हैं। इसके बाद सब कार्निवर्स ही होते हैं। तो ये प्रीडेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ लिखा है प्रीडेटर्स एक्ट एज एनर्जी कंडुइट्स। कंडुइट्स मीन्स होता है कैरियर। इट शुड बी एक्सप्लेन बाय यू through the giving example of different tropic level, the tropic level 1, tropic level 2, tropic level 3. The different tropic level organisms form the ecosystem and that actually show the food chain. So what happen actual in the food chain? The 10% energy from the producer to second tropic level, and from second tropic level to third tropic level, and if third tropic level onward living organisms available, then it will also transfer by the 10% of the next tropic level. It means from each tropic level if the predators get extinct, then what happen? Energy cannot accumulate from the producer to different tropic level in an ecosystem, and it will remain in the grass. So what happen? There will be नो एनर्जी डिलीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लायन है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से डायरेक्ट एनर्जी लेनी है, लेकिन लायन के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि लायन इस सनलाइट से एनर्जी ले सकता है। तो सनलाइट की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूसर जो है फिक्स कर लेंगे। अब इस प्रोड्यूसर को डियर, और डियर को जैसे ही लायन खाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करके जो सनलाइट की एनर्जी प्रोड्यूसर में आया था वो प्रोड्यूसर से मतलब प्रोड्यूसर से डियर में आ गया, और डियर से अब लायन में आ गया। यानी कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सनलाइट की एनर्जी लायन में पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंचा? ये प्रीडेटर्स के थ्रू पहुंचा, और वो प्रीडेटर्स कौन था? डियर था। ठीक है, तो ये आपको जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई प्रीडेटर्स act as energy conduits across the tropic level. It should be explained by you through the different way in among the one page. As we know that in the different tropic level, that is from tropic level 2nd onward, every organisms occupied as known as the predators, which will able to carry the energy from one tropic level to another tropic level from the producer. So producer
release their energy to the different trophic level, and in each trophic level predators act as the energy conduits or energy carrier in different trophic level. So it should be explained by you. The statement is right, predators act as energy conduits. It should be explained by you. Next is predators keep the prey population under control. As I have told you, if the all lions get extinct, if the all lions get extinct, then what happen? Then deers immediately increase in the forest, and that is the region, so that the all grasses or all plants may also be get extinct. So deer, that is deer automatically increase in the population, which is responsible to decrease the level of plants in that particular area. So deer is controlled by the lion, and the overall lion is responsible for the vegetation, for the growth of plants and grasses in the forest. So it should be explained in your own language. The predators keep prey population under control. ठीक है, एक बेटर एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में है, इसको समझना है. Problems of cactus spreading in Australia solved by the specific cactus feeding mode in 1920s. एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे. ऑस्ट्रेलिया में बड़े शौक के नाते एक स्पीसीज कैक्टस को ला करके लोग किसान, जो प्रोफेशनल लोग थे, ठीक है, सजावट के नाम पे कैक्टस को ला करके बोना शुरू कर दिए. ठीक है, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा हुआ है कैक्टस का प्लांट्स. तो कैक्टस को बोना शुरू कर दिए. फिर उसके काटने में जो भाई उसका छाटना है, काटना, भाई इतना ग्रो करेगा तो लोगों को नुकसान पहुँचाए, काट छाट के इधर उधर फेंकते थे. धीरे धीरे कैक्टस जो है क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉइट कर गया, यानी कि कैक्टस जो है ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया. कब? 1920 में कैक्टस जो है ग्रो कर गया. अब ये ओवर ग्रोथ जो है, ये जो है कैक्टस का जो ओवर ग्रोथ है, ये वहाँ के लोकल पीपुल के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया बेटा, ये प्रॉब्लम हो गया. अब जो प्रॉब्लम हो गया तो लोग क्या किए, परेशान हो गए. उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या की, स्पेसिफिक कैक्टस फीडिंग मोथ, एक ऐसे इंसेक्ट को, स्पेसिफिक मोथ जो सिर्फ कैक्टस को ही खाता था, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ला करके क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए. अब स्पेसिफिक जो कैक्टस फीडिंग मोथ था, उसके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, जितने भी कैक्टस ग्रो कर रहे थे सब के सब क्या हो गया, उसका जो जनरेशन था वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया. ठीक है, अब जब डाउन होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई. फिर से एक बात सुने, 1920 में प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो गई, कैक्टस को लोग बोने के लिए, साजो सामान को शौक के लिए बोने के लिए लाए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया. उसके बाद स्पेसिफिक कैक्टस फीडिंग मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता. सो सम टाइम इन दिस बिहेवियर the predators act as the biological control. This should be another points for you. Predators act as biological control. Keep in mind, this is very important topic. Now back to the next point. Predators also maintain the specific diversity in community by ideal behavior of interspecific competitions. What is interspecific competitions? Suppose that one is predators and other is its prey. Listen carefully. If one is predators and other is specific prey, then if the prey get lost, then the predators also get lost. That is known as the co-extinction, and that may ask in the examination, co-extinction. So in this way predators act as the ideal behavior to maintain the specific diversity in a community. Example, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वहाँ का जो स्पेसिफिक जो है स्टार फिश था, जिसका नाम था पिजास्टर. ये पिजास्टर्स एक स्पेसिफिक जो स्टार फिश था, उसको रिमूव किया गया तो पता चला कि उससे रिलेटेड 10 जो स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की थी, वो भी जो है 1 साल के अंदर वो भी जो है क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. That is known as the co-extinction. So loss of 10 species of invertebrate in a year from American Pacific coast by removal of starfish disasters is the greater examples of interspecific competition. So predators act as to maintain the specific diversity. It may ask in the examination, it act as to maintain the specific diversity
That is the special way to explain the role of predators in an ecosystem. It acts to maintain the specific diversity in an ecosystem, like the starfish disasters that actually interdependent with another kinds of invertebrates that are predators of that are actually prey for the starfish. If the starfish get extinct, then they also get extinct because of having special kinds of food behavior along with the starfish disasters and 10 different kinds of invertebrates. Now the adaptation in prey to avoid feeding from predators. देखो जितने भी predators होते हैं ना, वो चाहे वो हर्बीवर्स हो चाहे कार्निवर्स हो, वो स्पेशल हर्बीवर्स, जैसे कार्निवर्स है तो हर्बीवर्स को खाएगा और हर्बीवर्स है तो प्लांट्स को खाएगा। तो कुछ प्लांट्स के पास अपना कुछ ऐसा एडाप्टेशन होता है जिसकी वजह से प्रीडेटर्स उसके आसपास मंडरा नहीं पाते, उसके आसपास जा करके उसको खा नहीं पाते। ऐसे ही हर्बीवर्स की कुछ खास बात होती है जिसकी वजह से कार्निवर्स उसका कुछ नुकसान नहीं पाते हैं, उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग के थ्रू हम समझेंगे एडॉप्टेशन इन प्रे टू अवॉइड फीडिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स। इट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट एडॉप्टेशन बाय विच predators help to avoid themselves from the avoid themselves from the predators. Point 1, natural adaptation in plants to avoid grazing from the predators, that is herbivores. अब herbivores से बचने के लिए प्लांट्स के पास ऐसे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इट कंसिस्ट इज पॉजेस द हाईली टॉक्सिक कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स। इट है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा पॉजेस की अलग लिख दी है, यहाँ पे आप POSSES लिखेंगे। जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है जिसको आप लोग कॉमनली मदार बोलते हैं ना, मदार, उसके पास हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है और नाम क्या है? कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स। एक कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स की वजह से जो मिल्की लेटेक्स होता है ना मदार का, मिल्की लेटेक्स, उसी में होता है कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, आँख वगैरह में पड़ जाता है तो आप देखोगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मदार के दूध से अवॉइड करते हैं, बोलते हैं आँख में पड़े, आँख जो है थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। तो इसी वजह से जो है आप देखोगे मदार को बहुत कम, ग्रेजर्स जो है मदार को जल्दी खाते नहीं। ठीक है, मदार को खा नहीं सकते ग्रेजर्स बिकॉज ऑफ हैविंग द हाईली टॉक्सिक कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स। इट कैन बी explained by you in your own language as we know that Calotropis procera consists the highly toxic cardiac glycosides in the latex, so that the browsers and the herbivores are rarely feed to the Calotropis procera. Similarly, cactus and acacia are actually having the spiny leaf so that the grazers cannot feed them. These are the adaptation. Plant that consist nicotine, caffeine, quinine, स्ट्राइचनिन, ओपियम आर आल्सो अवॉइड बाय द ग्रेजर्स। प्लांट जैसे निकोटीन, निकोटियाना टैबेकम हुआ, ओपियम हुआ, पाइपेबर सोमनीफेरम, ये भी ग्रेजर्स इसको भी नहीं खाते। रीजन क्या है कि ये सब एल्केलॉइड्स हैं और ग्रेजर्स अपने आप को बचाने के लिए इसको नहीं खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी एडॉप्टेशन होता है। एनिमल्स भी अगर प्रे है तो प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए कुछ एनिमल्स जो कैमोफ्लेज बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अपना कलर बदल लेते हैं जिससे प्रीडेटर्स उसको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। ये आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एडॉप्टेशन इन मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई एक स्पेशल काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मोनार्च बटरफ्लाई जो है, मोनार्च बटरफ्लाई एक्चुअल में मोनार्च बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है ना, लार्वा, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, साथ साथ ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के नाते कोई भी प्रीडेटर्स इसको खा नहीं पाता है। ठीक है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस के नाते ही ये प्रीडेटर्स कोई भी इसको खा नहीं पाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है, मोनार्च बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी डिजाइन ऐसे होती है कि अपने आप को एनवायरनमेंट में हाइड करा देता है। सो टू वे दैट इज मोनार्च बटरफ्लाई अवॉइडेड बाय द प्रे। फर्स्ट ऑफ ऑल, its caterpillar release the highly toxic substances so that the predators cannot feed them, and the adult of monarch butterfly hide themselves in the environment so that predators cannot identify the monarch butterfly. ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है monarch butterfly का। इसके अलावा आप lizard, snakes, ठीक है, wasp, वेस्ट को लिखा था wasp, ये सब भी अवॉइड किए जाते हैं, ये सब भी खाए जा सकते हैं। कोई भी प्रेडेटर्स वेस्प को या स्कॉर्पियन को पकड़ के खा नहीं सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है
कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से प्रीडेटर्स उसके पास आने से मडराते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था प्रीडेशंस का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर की अगली स्लाइड्स में मैं कॉमन सेलिज्म को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब आते हैं कॉमन सेलिज्म को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।